Hey everyone, I would like to welcome you all in today's video. Well, yes, it is going to be my first video. First I thought I should make an introduction video, but later after I changed my mind. But that would have been different scenario. So to be honest, I am not a camera-holic guy. So perhaps you guys might have seen me for the very first time. And some of you know me very well and some of you don't. So here I am introducing myself. My name is Sithen and I will be teaching you all about an English language. So language is just a medium to communicate with others, and English is not really a big deal. It is just as easy as ABC, or I must say it is just a piece of cake. So what happened yesterday, one of my students asked me a question, "Sir, how did you learn all these things?" So first I laughed, then I replied, the question isn't how, the question is when. So it's just all about consistency and practice. So let me tell you one very important thing, guys. I have written a book about an English language in which I have mentioned more than 5,000 daily spoken sentences with their rules that I will be sharing with you all in my upcoming videos. So let's start our first topic. Well, yes, some of you guys might be wondering, why have I chosen tenses? Any guesses? Yeah, you got me right. This might sound cliche, but I have to say this. I have seen many people doing multiple grammatical mistakes, in little bilateral conversation, because I grew up in the same environment and I felt that, well, it's not like you watch my video and your work is finished. No, you have to relate it with your daily routine work, because what we all know about English is just a little drop, and what we all don't know, it's like an ocean. So, okay, I won't go much deeper about that, otherwise you guys will feel monotonous. So without wasting any moment, let's start this session. So yeah, as I have written here, tense. So basically there are three tenses: past, present, future, and each one of them is divided into four more aspects. First one is simple, second one is perfect, third one is continuous, and last is perfect continuous. So first we will talk about simple present tense. So simple present tense include those sentences that are habitual in nature, or we can say that happen on a regular basis, and it also includes those sentences that are universally true in nature. For example, सूर्य हमें रोशनी देता है. So for example, sun gives us light. And हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है. The earth revolves around the sun. सन ईस्ट में राइज होता है, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट. एंड लास्ट वन इज़ माई फेवरेट, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है. सो लेट मी ट्रांसलेट दिस फॉर यू. चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर. सो the sentences that I have written here, these all are universally truth. It means they cannot be changed at all. They are fact that can never be changed. So let's move our first part of the topic. So let me clean this. So affirmative sentences are those sentences that are positive in nature. It means it do not include any negative or interrogative sentence. So इसमें कोई भी नोट और क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस नहीं आएगा. एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं अपना वर्क करता हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ, ता हूँ, ती है, ते हैं. So that sounds define us that the work is happening on a regular basis. The sound is ता है, ती है, ते हैं. So whenever you hear the sound ta hai, ti hai, te hai, so it means that the sentence is all about simple present tense. First of all, we will talk about the structure. First of all, subject will come, then verb first form, after then s and es. If there is third person, singular third person, and last one is object. So I have mentioned s and es. So you have to put this s and es with the main verb if the person is singular and as well as third person. So for example, I am teaching you and I, मैं अभी फर्स्ट पर्सन हूँ, एंड यू, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यू आर सेकेंड पर्सन. सो लेट्स टेक एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन. माई ब्रदर सैम, ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है. मैं अपने भाई की बात कर रहा हूँ, वह अभी थर्ड पर्सन है, वह अभी यहाँ पे नहीं है, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सेकंड. हम फर्स्ट सेकंड बात कर रहे हैं.
बट थर्ड पर्सन की हम जब बात करते हैं तो वी हैव टू पुट एस एंड ई एस विद द मेन वर्ब. इफ़ देर इज़ ही और शी और इट और एनी अदर पर्सन नेम, for example Sam. So you all know about he and she. You can take any other name also. I have written it. So the word it used when you don't know the person that you are talking about is a boy or a girl. So I have written some sentences here. For example, सैम स्कूल जाता है, वो थर्ड पर्सन है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ. तो जब भी हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे हम वर्ब में एस एंड ई एस लगाएंगे. अगर आप देखते हैं लास्ट में ओ है तो आप ई एस लगाएंगे उस वर्ब में. फॉर एग्जांपल डू में डज लगाएंगे. एंड नेक्स्ट वन इज ही राइट्स अ लेटर, वह लेटर लिखता है. अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड पर्सन, सो दैट्स वाई आई हैव पुट एस with the main verb. And she sings a sweet song, so I have again put s with the main verb, so because she एक third person है. And now last, Zara plays football. Zara फुटबॉल खेलती है, so मैंने यहाँ पर भी s लगाया है because Sam, he, she, Zara, they all are third person and singular also, so you have to put s and es. Now I will tell you where you don't need to put s and es. अब सेंटेंस चेंज करता हूँ. वहाँ पर था ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, बट अब हम ही की नहीं बात कर रहे, अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ. आई गो टू स्कूल, सो आई गो टू स्कूल. अब यहाँ पर गोज़ नहीं आएगा बिकॉज मैं अभी फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ. सो बिकॉज आई एम अ फर्स्ट पर्सन एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. सो यहाँ पर था ही राइट्स अ लेटर, ही वॉज अ थर्ड पर्सन, बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट यू. यू राइट अ लेटर. अब यहाँ पर एस और ई एस नहीं आएगा बिकॉज आई फर्स्ट पर्सन है और यू आप सेकंड पर्सन है. एंड यू राइट अ लेटर, इट मीन्स आप लेटर लिखते हैं और आप सेकंड पर्सन है और मैं फर्स्ट पर्सन हूँ. अगेन वी सिंग अ स्वीट सॉन्ग, हम एक अच्छा गीत गाते हैं. अब यहाँ पर हम लोग सभी लोग, अब हम यहाँ पर सभी लोग हैं, हम यहाँ पर प्लूरल हैं, तो यहाँ पर भी हमारा एस नहीं आएगा. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दे प्ले फुटबॉल. यहाँ पर भी हम एस नहीं लगाएंगे बिकॉज दे इज ऑल्सो प्लूरल एंड वी ऑल्सो प्लूरल एंड यू इज अ सेकंड पर्सन एंड इट होगा, तो आपको वर्ब की मेन फॉर्म में एस एंड एस लगाना होगा. और इफ़ वहाँ पर, और अगर वहाँ पर आई वी यू दे होगा, वी एंड दे आर प्लूरल, सो एंड आई इज़ द फर्स्ट पर्सन एंड यू इज़ द सेकंड पर्सन, सो आप वहाँ पर एस एंड एस नहीं लगाएंगे. दिस इज द रूल, यू हैव टू लर्न दिस. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेगेटिव सेंटेंस. Negative sentences are those sentences that contain no and not. So for example, structure यहाँ पर भी सेम ही है, subject plus do or does plus verb first form plus. So this do and does ये एक helping verb है, आपको ये negative sentence में यूज़ करना है. So now let's take an example. So I do not go टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ. नो वाले सेंटेंसेस आएंगे यहाँ पर. यू डू नॉट राइट लेटर, आप लेटर नहीं लिखते हैं. वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं. सो अगेन आई यू एंड वी. आई इज़ अ फर्स्ट पर्सन, यू इज़ अ सेकेंड पर्सन एंड वी इज़ प्लूरल. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. आई यू और वी के साथ हम डू का यूज़ करेंगे और डज का यूज़ हम कहाँ करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ. अगेन लेट्स टेक एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन. वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है. ही डज नॉट गो टू स्कूल. यहाँ पर अब थर्ड पर्सन आ गया तो आपको एस एंड ई एस वाला हेल्पिंग वर्ब लेना है. नाउ सैम डज नॉट राइट लेटर, सैम लेटर नहीं लिखता है. एंड लास्ट शी डज नॉट प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेलती है. सो आपको ही सैम शी और इट मिलेगा, तो वहाँ पर आपको एस एंड ई एस लगाना है विद द हेल्पिंग वर्ब. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस दैट कंटेन क्वेश्चन मार्क. तो यहाँ पर WH फैमिली के वर्ड्स आएंगे. फॉर एग्जाम्पल वेयर, वैन, वॉट, वाई. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट डू एंड डज अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड देन यू हैव टू राइट सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. सो ये दोनों सिमिलर सेंटेंसेज हैं, आप इसमें डिफरेंस देखिए. क्या आप खेलते हैं, आप क्या खेलते हैं. सो नाउ आई एम ट्रांसलेटिंग दीज सेंटेंसेज.
डू यू प्ले, वॉट डू यू। सो मैंने यहाँ पर लिखा है क्या आप खेलते हैं। सो आप इसका आंसर कैसे देंगे, क्या आप खेलते हैं, आप बोलेंगे हाँ मैं खेलता हूँ, येस और नो। सो वेन एवर यू आंसर द क्वेश्चन विद येस और नो, इट मीन्स आप डू को पहले यूज़ करेंगे अगर आप आंसर येस और नो में दे सकते हैं। सो आप इसका रिप्लाई येस और नो में नहीं देंगे, बिकॉज क्वेश्चन ईयर आपसे मालूम कर रहा है कि आप क्या खेलते हैं, कौन सा गेम खेलते हैं। सो यू हैव टू टेल विच गेम डू यू लाइक टू प्ले, आई प्ले। सो आप उसको आंसर देंगे आई प्ले फुटबॉल। तो आई थिंक आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स टेक मोर एग्जाम्पल्स। सो मैंने यहाँ पर लिखा है क्या वह पत्र लिखता है, तो वह अभी थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो आप क्या पहले आ रहा है, आप इसका आंसर यस और नो में दे सकते हैं। तो डज ही राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखता है। अब आपने यहाँ पर देखा कि ही थर्ड पर्सन है, बट अब आप यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे बिकॉज आपने ऑलरेडी ई एस लगा दिया है इन हेल्पिंग वर्ब। सो नेक्स्ट ट्रांसलेशन इज क्या वह खेल खेलते हैं। सो ए मीन्स प्लूरल है वो, तो डू दे प्ले गेम्स। टू इसलिए आया बिकॉज दे वे प्लूरल है, और यहाँ पर ई एस इसलिए लगा बिकॉज थर्ड पर्सन है वो सिंगुलर है। सो लेट्स टेक मोर एग्जाम्पल्स। नाउ सी ट्रांसलेशन। वह स्कूल कब जाता है, कब की इंग्लिश होगी, डब्ल्यू एच फैमिली से वर्ड आएगा आपका वैन। सो वैन थर्ड पर्सन है वह एक, डज ही गो टू स्कूल, वह स्कूल कब जाता है। नाउ तुम पत्र क्यों लिखते हो, क्योंकि इंग्लिश आपको पता है डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड है वाई। सो वाई डू, बिकॉज तुम इज अ सेकेंड पर्सन, वाई डू यू राइट अ लेटर, आप पत्र क्यों लिखते हैं। सो बाय द वे एवरी मदर लव्स हर चिल्ड्रन। आवर लास्ट टॉपिक इज इंटरोगेटिव सेंटेंस विद नेगेटिव सेंटेंसेस। सो यू हैव टू पुट नॉट आफ्टर सब्जेक्ट। सो द ट्रांसलेशन विल बी क्या सैम पत्र नहीं लिखता है। सैम इज अ सिंगुलर पर्सन, सो यू हैव टू पुट एस एंड एस। आप इसका आंसर यस और नो में दे सकते हैं। सो डज सैम नॉट राइट अ लेटर will be the correct sentence. So does Sam not write a letter? I have put not because you have to put not after subject and subject is Sam. So the next translation will be क्या वह स्कूल नहीं जाती है। Again जाती है, it means she is a girl and she is singular, so you have to start this sentence with does. Does she not go to, does she not go to school, क्या वह स्कूल नहीं जाती है। क्या तुम पत्र नहीं लिखते हो। नाउ क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। सो आई हैव चेंज देयर सब्जेक्ट, सो यू हैव टू चेंज डू एंड डज ऑल्सो। द करेक्ट सेंटेंस विल बी क्या तुम पत्र नहीं लिखते हो। सो डू यू नॉट राइट अ लेटर, बिकॉज तुम यू इज़ अ सेकेंड पर्सन, so that's why I have put do. So next example is क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। Again मैं means I और मैं एक फर्स्ट पर्सन हूँ, so do I not go to school. You can also say the sentence don't you write a letter, because we mostly use not with helping verb. Don't you write a letter. So both are acceptable, but you need to understand the structure of the sentence. So that was all. I know some of you guys are familiar with these rules, but you know sometimes you guys forget to implement them. You should better make notes of these things today what I have explained you, otherwise you might forget. So if you have any doubt or query, do let me know in the comment section. I will get in touch with you soon. So I am all ears, and thank you guys for being with me till the end. See you soon. Till then, keep learning and keep going.